Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News NE. Defense Minister Rajnath Singh informed that India's defense production is set to exceed rupees 1.6 lakh crore this year. Here we are bringing you the full details. Defense production to exceed rupees 1.6 lakhs crore soon, targeting rupees 3 lakh crore output by 2029. This has been announced by Defense Minister Rajnath Singh. Defense exports projected at rupees 30,000 crore yearly. 75% procurement budget reserved for Indian companies. Cyberspace warfare, key future defense challenges. Yes, viewers, Defense Minister Rajnath Singh stated that India's defense production is set to exceed rupees 1.6 lakh crore this year as the government charts a bold roadmap to position the country as a global defense manufacturing hub. While addressing a Defense Conclave 2025 Force of the Future, Singh emphasized self-reliance, innovation and strategic transformation as the pillars of the new device vision. Singh stated that the transformation is not just numerical but strategic, aimed at reducing foreign dependence and creating a robust military-industrial base. Defense exports are also expected to see a significant jump. The government projects exports worth rupees 30,000 crore this year and 50,000 crore by 2029. Singh stated India's growing military strength is meant for credible deterrence and peace, not confrontation. Peace is only possible when we remain strong, he asserted. The minister highlighted key reforms including the restructuring of the 200-year-old Ordnance Factory Board, now functioning as profitable entities. Singh also detailed that effort through 5 positive lists issued by the Armed Forces and DPSUs. This list covering 509 defense platforms and 5,112 DPSU items respectively mandate domestic production under a phased plan. In a major policy shift, 75% of the capital procurement budget has been earmarked for Indian companies, strengthening the Make in India push in defense. Singh warned of an increasing, unpredictable and multi-dimensional battlefield, highlighting the rise of cyberspace and narrative warfare to country. To counter this, he stated the government's approach includes long-term capacity building and continuous reform. Here is what Defense Minister Rajnath Singh have stated. इस साल हमारा टारगेट है कि डिफेंस प्रोडक्शन 1.60 लाख करोड़ को पार कर जाए इस साल, इसी साल, जबकि हमारा टारगेट 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन करने का है। 2029 तक हमारा यह टारगेट है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ तक पहुंच जाए और 2029 तक 50,000 करोड़ का हमने टारगेट इंश्योर किया है। भारत में जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने डिफेंस सेक्टर के रिवाइवल के साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथनिंग को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक रखा है। मित्रों, सरकार में आने पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज थी वह डिफेंस को लेकर एक अजीब माइंडसेट को लेकर था, जो डिफेंस को लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन के अभाव से पैदा हुआ था, ऐसा मैं मानता हूं। उस समय फोर्स फॉर द फ्यूचर की बात सोचने का भी साहस लोग नहीं करते थे, क्योंकि फोर्स ऑफ द प्रेजेंट के लिए भी कोई तैयारी दिखाई नहीं देती थी और देश में एक मजबूत डिफेंस सेक्टर होना चाहिए, इस पर कोई काम मजबूती से हो नहीं रहा था। अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स को पूरा करने के लिए उस समय की बस यही सोच थी, बहुत होगा तो इंपोर्ट कर लेंगे।
कोई कंपल्सन रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण से, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह सब सारी बातें उनकी प्रायोरिटीज में नहीं थी। सबसे पहले हमने इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश की है हमारी गवर्नमेंट ने। भारत अपनी डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा और देश में एक ऐसा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा जो केवल भारत की नीड्स को ही नहीं बल्कि दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल को भी मजबूत करेगा। लेकिन नए समय को देखते हुए, नई जरूरतों को देखते हुए हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया ताकि वह और ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सकें, वह और ज्यादा आउटपुट दे सकें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ सके। साथियों, नतीजा हमारे सामने है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपने नए स्वरूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और लॉस मेकिंग एंटिटीज की जगह प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स वो बन चुकी हैं। मैं मानता हूं कि 200 साल से अधिक पुराने स्ट्रक्चर को बदलना इस सेंचुरी का अब तक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, वेपन्स हैं, हमारा यह फर्म कन्विक्शन है कि चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी सूरत में इन आइटम्स को हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि भारत में बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों बनाएंगे। ऐसे आइटम्स जो हमने इसमें शामिल किए हैं उन्हीं को हम पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कहते हैं। इसमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। इनका प्रोडक्शन अब भारत की धरती पर ही किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बतलाया। ठीक इसी प्रकार हमारी डीएपीएसयू द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई। अब उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, उसके लिए हमको आग्रह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारी डीपीएसयू ने भी यह इनिशिएटिव लिया। उनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स होती हैं, सब सिस्टम्स हैं, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स सहित लगभग 5012 ऐसे आइटम्स को पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में उन्होंने डाला है। इनका भी प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत में ही किया जाएगा। साथियों, जब हम मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहे थे तो उस समय हमने डोमेस्टिक कंपनीज के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा है। इसलिए सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए डिफेंस बजट का 75% डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व किया हुआ है। यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं मानता हूं कि हमारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। Yes, viewers, Rajnath Singh further credited Prime Minister Narendra Modi's leadership in a mindset shift from being a buyer to becoming a producer. He concluded by reiterating the government's resolve to make India a developed nation with a globally respected military. That's all for now. For further updates, keep watching My News NE.